Hello everyone, welcome to CBSE Hub and I am your chemistry teacher in CBSE Hub and today's topic is oxidation, reduction and redox reaction, a topic of class 10 chemistry. So let's start it. So what is oxidation and what is reduction? Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen or removal of electron, and reduction means addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of electron. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, बट इन रिडक्शन रिएक्शन हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है. सो ये क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं. So, what is oxidation reaction? When oxygen is added to one substance, then it is known as oxidation reaction. When carbon is added to oxygen, it forms carbon dioxide. Carbon and oxygen is reactant side. It is reactant side, and carbon dioxide is present at product side. So here in carbon oxygen is added, so here carbon is oxidized. So when oxygen is added to one substance, then it is known as oxidation reaction. And another example is when copper is reacted with oxygen, it forms copper oxide. Here copper is oxidized. Another type of oxidation reaction is by removal of hydrogen. By removal of hydrogen. If a substance contains hydrogen, but in reactant side it contains hydrogen, but in product side if it does not contains hydrogen, then it is also known as oxidation reaction. Let it is an example. Hydrogen sulfide react with chlorine to form hydrogen chloride and sulfur. Here in hydrogen sulfide, sulfur contain hydrogen, but in product side, sulfur does not contain hydrogen. So here removal of hydrogen is held. Removal of hydrogen is held. So it is reduction. So here H2S is H2S is oxidized. Sorry, here removal of hydrogen, oxidation. So in next slide, understanding reduction reaction. Reduction reaction means addition of hydrogen or removal of oxygen. तो जब तक हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा. हियर इन ऑक्सीजन देयर इज नो हाइड्रोजन, बट इन प्रोडक्ट साइड विद ऑक्सीजन देयर इज हाइड्रोजन. सो हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हेल्ड. सो इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is held. So oxygen is reduced. Another example is when sodium reacts with hydrogen to form sodium hydride. So in sodium there is no hydrogen, but in sodium hydride there is hydrogen. So इधर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो इधर सोडियम में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. सो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे. सो इधर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, सोडियम इज रिड्यूस्ड. सोडियम इज रिड्यूस्ड.
Another type of reduction reaction is when in a substance oxygen is held, but in a product side this substance does not contain oxygen. और हम भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर पोटेशियम डाइक्लोरेट के साथ क्या हो रहा है, तो इधर ऑक्सीजन है बट इधर साइड ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, KClO3 का रिडक्शन हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे। समझ में आ गया। सो व्हाट इज रिडक्स रिएक्शन? Redox reaction means both oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. If redox reaction means reduction भी होगा और oxidation भी होगा। इधर क्या होगा, एक स्पेसिस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, अनदर स्पेसिस क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो चलते हैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। इधर देखो एक एग्जांपल लिया है, copper oxide react with hydrogen to form copper and water. It is a type of displacement reaction. It is a type of displacement reaction. It is a displacement reaction. तो इधर क्या है देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, बट जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है, कॉपर निकलता है। तो कॉपर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन है, बट इधर क्या है, कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, रिड्यूस बोलेंगे। समझ में आ गया क्या? इधर देखो अभी हाइड्रोजन के साथ क्या है, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, बट जब हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कर लेता है इधर क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। देखो इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है बट वाटर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। जब इधर ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। इसका हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। समझ में आ गया क्या? ओके, अनदर एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इधर क्या है, आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, आयरन फॉर्म होता है और वाटर भी फॉर्म होता है। तो देखते हैं क्या होता है। इधर आयरन ऑक्साइड के साथ ये आयरन 3 ऑक्साइड, ये क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड है। आयरन 3 ऑक्साइड के पास, सॉरी ये आयरन 4 ऑक्साइड है, सॉरी ये आयरन 4 ऑक्साइड है। इधर आयरन 4 ऑक्साइड के साथ क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, आयरन फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। इधर देखो आयरन 4 ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, बट जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सिर्फ आयरन फॉर्म करते हैं। तो इधर आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो Fe3O4 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो जिसका रिडक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे। तो इधर रिड्यूस कौन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया क्या, Fe3O4। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इधर हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट के साइड में क्या है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? तो इधर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, H2 का ऑक्सीडेशन हो गया। इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इसको ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। तो कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, बोलो, ऑक्सीडाइज कौन हो गया,
H2 हो गया ऑक्सीडाइज। समझ में आ गया। जिस भी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जिस भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो समझ में आ गया क्या है। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। तो इधर और एक बात समझने वाली बात है क्या, जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा और जिसका भी रिडक्शन होगा इधर एक एजेंट काम करता है। क्या काम करता है, एजेंट काम करता है। लेट एन एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम LIC करने जाते हैं और कोई भी कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं तो LIC करने के लिए हम हमारे पास एक पर्सन आता है, वो बोलता है क्या तुम LIC करो, तुम्हारा वगैरह वगैरह ऐसा भी होगा। तो हमको वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो इधर जिसको भी रिडक्शन करने में जो हेल्प करेगा, इधर जो रिडक्शन करने में हेल्प करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, हेल्प इन रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो भी सब्सटेंस हेल्प करेगी इसमें ऑक्सीडेशन में, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इधर क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, देखो रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है रिड्यूस, देखो इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। जिसका भी रिडक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसको रिडक्शन करने में कौन सा सब्सटेंस हेल्प करे, जिस सब्सटेंस उसके पास होगा तो कौन सी सब्सटेंस हेल्प करे, उसको बोलो मुझे H2 हेल्प करे। इसका रिडक्शन हो रहा है ना, इसको जब रिडक्शन होगा तो किसका इसको हेल्प करेगा, कौन सी सब्सटेंस उसको हेल्प करेगा, उसके पास में जो होगा उसके पास में कौन सी सब्सटेंस है, H2 है। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया। जिस भी सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसके पास में जिस सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, जिस भी सब्सटेंस रिडक्शन में इसको हेल्प करता है। तो इधर कॉपर ऑक्साइड का रिड्यूस करने में कौन से सब्सटेंस हेल्प करते हैं, H2 हेल्प करता है। तो H2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया। तो अभी देखेंगे क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। तो इधर देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, इसका क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिसका भी ऑक्सीडाइज हो रहा है इसको ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने में कौन सी सब्सटेंस हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। तो जिस सब्सटेंस हेल्प करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। किसमें हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया क्या। तो इधर से एक बात निकल के आ गया क्या, जिस भी सब्सटेंस क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा वो इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस मतलब इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OA लिखते हैं। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा इसको हम क्या बोल देंगे, इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा उसका हम OA बोलेंगे, जिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसका हम क्या बोलेंगे, RA बोलेंगे। समझ में आ गया क्या। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। मैं वही बात इधर लिखा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस। एजेंट मतलब जो अनदर सब्सटेंस को क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज में हेल्प करेगा, उसका हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होते हैं। समझ में आ गया क्या। अनदर देखते हैं क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या फॉर्म करता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। देखो इधर जिंक के साथ ऑक्सीजन है और इधर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिमूवल ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे।
इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो जिससे कि सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किसके रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, रिड्यूस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूस। मैं अभी बोला था जो इटसेल्फ रिड्यूस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट देखते हैं, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम जानते हैं क्या क्या ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इधर क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। तो मैं अभी बोला था जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा, अनदर सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वो मतलब रिड्यूस में हेल्प करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इधर देखो, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आ गया। देखो, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया क्या, क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होते हैं। तो हमारा इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स रिएक्शन का टोटल पोर्शन कंप्लीट हो गए। तो आपका भी कभी कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, और तो फ्री टू आस्क अबाउट एनी कॉन्सेप्ट और एग्जांपल कवर। तो आपका जब भी कुछ भी डाउट होगा तो आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल टू अटेंड दिस क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। जय जगन्नाथ।